नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा और आप देख रहे हैं द टाइम्स ड्राइव शो। आफ्टर 2 very special editions, we're back to regular programming, but we have to start off by talking about the special editions first. You see, earlier this month we had our annual Times Drive Auto Summit and Awards, where the big names made the cut. However, some of them did not, because at Times Drive Auto Summit and Awards, we only award the best of the best. In case you missed that action, make sure you visit the YouTube channel of Times Drive, where you can see our award special. But now, let's talk about the episode. नजर डालते हैं क्या आने वाला है आपकी ओर over the next half an hour. शुरुआत करेंगे with a very special story that we are bringing you all the way from Spain. इंडिया की पहली 1200 सीसी की सुपर बाइक आपको देखने को मिलेगी आज हमारे साथ टाइम्स ड्राइव शो पर। बट इतना ही नहीं, साथ में नजर डालेंगे फोक्सवैगन की टाइगून पे, जिसको मिला है कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट and a new gearbox as well. We'll take it for a drive to find out if the value equation has really changed or not. And finally, from the world of scooters, we bring you the review of the Suzuki Bergman Street. There are some changes in there. We'll find out if it's worth your attention or not. तो जैसा कि आपने देखा, काफी कुछ आने वाला है आपकी ओर, और आज हमारे साथ है the Mercedes AMG CLE 53, and this is a properly fast car which holds the German badge with pride. However, if we talk about fast motorcycles, well, they don't really have an Indian badge to wear, but some of that is changing because recently TVS Motorcycles acquired Norton Motorcycles, and Norton is known for making some really exquisite machines. So what happens when that exquisite marquee motorcycle maker meets the might and size of TVS Motor Company? Take a look. Well, some days are better than others, and today is one of the good days because today I'm here in Spain at Monteblanco circuit and I'm riding a very special motorcycle. Ladies and gentlemen, let me present to you the Norton Manx R. ये 1200 सीसी की जो सुपर बाइक है एक्चुअली में इंडियन है, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया की पहली प्रॉपर 200 हॉर्स पावर सुपर बाइक हमें देखने को मिल रही है। Now I want to start off with the design of the motorcycle, and as you can see, this is a beautiful piece of machinery. All the components on this bike are top notch, be it the paint, be it the tolerances that the motorcycle is built with, be it the tight quality control that we see all across the motorcycle, or be it the sound of the machine. That's also top notch. A gentle V4 grumble giving us background music today. But like I said, once you see this motorcycle, you realize just how top notch this is. कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप इस मोटरसाइकिल में देख सकते हैं वो है इसके पैनल्स। अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है वो यहाँ से शुरू होता है हेडलाइट के पास से और जाता है पूरा पीछे की ओर यहाँ तक, और जो दूसरा पैनल जो आप इसके टैंक पर देख सकते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है और जाता है ऑल द वे to the back almost seamlessly. So it essentially feels like just two panels coming together to give you this clean look, again without a single bolt on the motorcycle. But there's still clever piece of aerodynamics at play. There's wind that goes through here next to the headlamp and comes out of here, and even when you're at low speeds, नॉर्टन ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करी है। यहाँ से हवा निकलती रहती है, ये जो आपको स्लैट्स दिख रहे हैं यहाँ पर साइड पे, यहाँ से भी आपको वेंटिलेशन मिलता है, जिसके चलते एक वेंचुरी इफेक्ट हमें मोटरसाइकिल का राउंड देखने को मिलता है, जिससे गर्म हवा कंटिन्यूसली यहाँ से डिसिपेट होती रहती है। हाईलाइट ऑफ द स्टोरी हैज टू बी द इंजन ऑन बोर्ड। 1200 cc's V4 engine makes about 209 PS of power. And the interesting bit is just the amount of engineering that has gone into it to make it really a clever piece of engineering marvel, which is that engine. What they have done is that they have shortened the size of the engine. जो V-bank होता है V4 engine का, आपको दूसरी बाइकों में 90 डिग्रीज पे देखने को मिलता है। इस सिचुएशन में वो 72 डिग्रीज हो गया है, जिसके चलते जो मोटरसाइकिल इंजन का साइज है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। साथ ही में हमें इस मोटरसाइकिल में दो थ्रॉटल बॉडीज देखने को मिलती हैं, और जो उन्होंने नई तरीके से इस मोटरसाइकिल इंजन को डिज़ाइन किया है उसके चलते मोटरसाइकिल इंजन की हाइट भी हमें कम देखने को मिलती है, जिसके चलते जो इंजन प्लेसमेंट है इज़
slightly higher up and more centrally focused, so the weight distribution of the motorcycle becomes fantastic. अब बात करते हैं राइडिंग कंफर्ट की. For reference, I'm 5'10" and I will show you just how well I fit onto the motorcycle. जैसा कि आप देख सकते हैं, I'm tiptoeing on the motorcycle, but still मेरे पास अच्छा खासा grip है इस motorcycle पे, so I can firmly balance this motorcycle without feeling nervous. The riding posture is actually quite comfortable. हमने इसको रेगुलर सड़कों पर भी चलाया और कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगा कि वी आर पुशिंग मोर और वी आर बाइटिंग मोर देन वी कैन च्यू. द मोटरसाइकिल हैड अस कवर्ड नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रोड कंडीशंस वी वर इन. अब बात करते हैं ट्रैक की. Monte Blanco race track is a very technical circuit. आपको पता होना चाहिए कि आपके टर्न इन मार्कर्स कहाँ पर हैं, आपके ब्रेकिंग मार्कर्स कहाँ पर हैं. यू हैव टू रियली टाइम योर एपेक्सेस. इफ यू डू ऑल ऑफ दैट, the entire circuit flows together really well, and that is where the nature of the motorcycle really shines through. It is a motorcycle that loves to flow through corners. एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी रेस ट्रैक पे वो है इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस. टॉप नॉच कंपोनेंट्री हमें यहाँ देखने को मिलती है और नॉर्टन ने कहा साफ साफ कि जब हम अब टीवीएस की बैकिंग के साथ इन मैन्युफैक्चरर्स के पास जाते हैं, चाहे वो बॉश इंजीनियरिंग हो फॉर अ कस्टम ट्यून्ड एल्गोरिथम फॉर देयर कंपोनेंट्स या वो ब्रेम्बो हो फॉर द टॉप स्पेक कैलिपर्स इन द बिजनेस, दे टेक देम very seriously because they know the scale that Norton Motorcycles now represents. Acceleration की बात करें, टायर्स हर वक्त ग्रिप हमें यहाँ देखने को मिलता है. इलेक्ट्रॉनिक सेटअप जो इस मोटरसाइकिल का है वो वाकई में शानदार है. इट रियली कंट्रोल्स द मोटरसाइकिल इवन व्हेन यू वैक ओपन द थ्रॉटल. स्ट्रेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर एक अलग चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिलती है. नॉर्टन कहता है कि मेक व्हीलीज ग्रेट अगेन. They really want you to experience wheelies on this motorcycle, so they give you wheelie control. They don't give you anti-wheelie, and they're very specific about this because they say you're supposed to have fun on the motorcycle, and this one is more than happy to let the front wheel off the ground. So to sum it all up, we have to talk about the resurgence that Norton Motorcycles is going through. There was a very interesting thing that they mentioned during our conversation, that about 5 years ago, most of the people that are making this motorcycle right now weren't even there in the company. For all intents and purposes, this is a project that has come out at a very fast timeline, and what a cracking job Norton Motorcycles has done with the Manx R. We're very excited to see where this journey goes. Of course, ये motorcycle India में भी आएगी, वहाँ पे भी इसका launch बहुत जल्द होने वाला है. और if a little birdie is to be believed, इसका जो प्राइस है वो वाकई में ऐसा होगा कि जो बाकी 200 हॉर्स पावर फ्लैगशिप मोटरसाइकिल्स होती हैं वो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगी महसूस होने वाली है. तो ऑल इन ऑल ना ही उन्होंने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया है, बट उसकी जो सेल्स स्ट्रैटेजी है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है, उसका जो प्राइसिंग है, जो वैल्यू है जो ये मैन्युफैक्चरर देगा आपको एज अ कस्टमर, दैट इज ऑल्सो लुकिंग टू बी एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग. इन द मीन टाइम वी जस्ट एंजॉय द grumble of this Norton V4. Now let's move on to the next story on the episode. It's time to talk about Volkswagen. You see, recently the Taygun got a comprehensive update. It got some new looks, it got some new features, and most importantly, it also got a new 8-speed gearbox with a 1-liter engine option. And this time around, the car has been updated with everyday driving conditions in mind. So now they're not only catering to the enthusiasts, but everyday drivers as well. Dhruv Paliwal got his hands on the car. Here's what he has to say about it. अब जब एक मिड साइज एसयूवी खरीदने की बात होती है, स्पेशली अ जर्मन एसयूवी जिसमें वो जर्मन राइड क्वालिटी, जर्मन हैव, जर्मन बिल्ड क्वालिटी, अल्टीमेटली दैट जर्मन ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है. वन ऑफ देम टिल नाउ हैज बीन द टाइगुन. अब यहाँ क्या चीजें बदली हैं, हाउ हैज द ओनरशिप एक्सपीरियंस, ड्राइविंग फील कैसी होगी है, किस टाइप के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड अल्टीमेटली व्हाट डज द डिजाइन now look like, how does it feel? इन्हीं सारी चीजों की बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. डिजाइन की बात करूं, फ्रंट एंड की बात करूं तो स्पेसिफिकली आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो
हेडलैम्प्स को एक नई शेप दी गई है। इट्स अ मोर स्लिमर अप्रोच एंड दे वाइडन आउट एज दे मूव टुवर्ड्स द आउटसाइड। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक कनेक्टेड एलईडी बार मिलता है बीच में। बम्पर का लोअर हाफ भी रिवर्क किया गया है। साइड से बात करें तो सिंपल, लाइक ऑल कार मेकर्स व्हेन दे आर डूइंग अ फेसलिफ्ट, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ नहीं बदला है। एक नया एलॉय व्हील डिजाइन आपको यहाँ जरूर देखने को मिलता है। अब रियर की बात करें, वंस अगेन कार लुक्स प्रीटी मच सिमिलर। एलईडी बार तो पहले भी कनेक्टेड यहाँ पे आता था, बट अब जो सेंट्रल लोगो है वो भी इल्यूमिनेटेड हो गया है एंड लाइट सिग्नेचर नया है। नीचे की तरफ बात करें, यहाँ पे बम्पर पे भी थोड़ी सी रिवर्किंग करी गई है। अब इंटीरियर में व्हाट्स द चेंज, लाइक ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं, डिजिटल है अभी भी। काफी सारी इंफॉर्मेशन इस डिस्प्ले पे आती है, काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में आती है। आप अपने पूरे मैप्स लगा सकते हैं, आप अपनी ट्रैवल की फिगर्स जैसे कि आपका ट्रिप डेटा, ये सारी चीजें देख सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी, स्पीड को भी आप अलग या तो राउंड डायल्स वाले फॉर्मेट में देख सकते हैं या फिर एक रेगुलर स्पोर्टी फॉर्मेट में, जहाँ पे चीजें बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से डिस्प्ले करी गई हैं। साथ में ही बात करता हूँ इस टच स्क्रीन की, अब यहाँ पे फंक्शनैलिटी सिमिलर हो गई है, थोड़े कलर्स में डिफरेंस फील होता है एंड ऑनेस्टली पोजीशनिंग चीजों की थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। यू गेट योर ड्राइविंग डेटा एंड ऑल आल्सो ओवर हियर। अब मैं टाइगन की रियर सीट में आ चुका हूं एंड वंस अगेन मैं यहाँ पे कहूंगा तो पुरानी टाइगन के कंपैरिजन में चीजें काफी सिमिलर ही है, बट फॉर वन बिग डिफरेंस एंड दैट इज अ पैनोरामिक सनरूफ। पहले टाइगन में एक रेगुलर इलेक्ट्रिक सनरूफ आती थी जो सिर्फ आगे के पैसेंजर्स को ही वो सनरूफ वाले मजे देती थी। सीट कंफर्ट की बात करूं, थिंग्स आर द सेम एज बिफोर। आप काफी स्नगली अपनी सीट पे बैठते हैं, ग्रेट अंडर थाई सपोर्ट, लॉट्स ऑफ स्पेस टू टक इन माय फीट अंडरनीथ द ड्राइवर सीट इन फ्रंट ऑफ मी। हेडरेस्ट यहाँ पे इंडिविजुअल मिलते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए एंड ऑनेस्टली द एंटायर एंगल ऑफ मी सिटिंग ऑन द सीट इज अ वेरी कंफर्टेबल वन एंड आई कैन स्पेंड many hours sitting in this seat. तो हम आ चुके हैं टाइगन की ड्राइवर सीट पे एंड the powertrain that is there in the car that I'm driving, it's a 1 liter TSI engine. पहले भी आता था 115 PS, 178 Newton meters of torque. The 3-cylinder engine really does not feel like a 3-cylinder. Feels quite happy to rev. Red line तक काफी आसानी से जाता है. There is an equal spread of power across the rev band. तो बदला exactly क्या है यहाँ पे? Well, there is a new 8-speed automatic transmission with 1 liter engine. पहले आपको 1 लीटर इंजन के साथ एक 6 स्पीड 80 ट्रांसमिशन मिलता था। शिफ्ट क्वालिटी इज नॉट वेरी क्विक but it is very very smooth. If you want that drama, that sense of engagement, all you have to do is just pull down on the transmission lever and the transmission now enters sport mode. अब स्पोर्ट मोड का मतलब क्या है? वेल, ये गाड़ी का इंजन का मोड नहीं है, ट्रांसमिशन मोड है। एंड यहाँ पे क्वाइट सिंपली आई हैव टू से दिस, जो शिफ्ट टाइमिंग है वो थोड़ी क्विकन हो जाती है, उसकी वजह से ऑब्वियसली शिफ्ट की जो स्मूथनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आप थोड़ी बहुत टूटे हुए रास्तों से भी जा रहे हैं, वहां पे इफ योर स्पीड्स आर से 50-60, द कार एक्चुअली टेक्स ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑन द रोड इन इट्स स्ट्राइड। ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे जो कंफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच का एक बैलेंस चुना गया है, विच इज एयरिंग ऑन द साइड ऑफ परफॉर्मेंस, बट किसी भी वे में अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। I think that is something that really works for people who want to buy that Taycan because they are looking for a setup like that. And with the 1 liter now having a new 8-speed automatic transmission, I think this particular variant, this particular model has now become an even better car for families to buy. Now with that, we've come to the end of this video and it's time for me to share my impressions about the Volkswagen Taycan facelift. यहाँ पे फीचर्स की थोड़ी जरूर कोई कमी महसूस होने लग गई थी। डिजाइन की भी बात करें तो थोड़ी सी फ्रेशनेस रिक्वायर्ड थी एंड दोज आर बोथ थिंग्स जो इस अपडेट ने, जो इस फेसलिफ्ट ने एड्रेस करी हैं। सो आई थिंक if you've loved the Taycan always, you'll continue to love this Taycan. It will just feel a little bit more in with the times. आपकी क्या राय है? Does the Volkswagen Taycan facelift feel like a proper facelift update for this car? Let me know in the comment section below. Thank you so much for watching and until the next one, goodbye. And with that, it is time for a small break on the Times Drive show. But बने रहिए हमारे साथ क्योंकि जब हम वापस आएंगे लेकर चलेंगे आपको राइड पर with the Suzuki Bergman Street. वेलकम बैक, मैं हूं मानव सिन्हा, आप देख रहे हैं द टाइम्स ड्राइव शो और आज हमारे साथ है द माइटी Mercedes AMG CLE 53. This is one of the fastest cars that money can buy in the Indian market. But right now, we're going to talk about something a little bit more humble, something for the everyday commuter.
You see, the Suzuki Bergman has made a unique name for itself in the scooter segment. Now, it's got a new street version that's come out for the Indian market. Amber Banerjee swings a leg over the new scooter to find out if the value proposition has changed or not. हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। और आज मेरे साथ आप खड़ा देख रहे हैं द न्यू सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट। अब देखिए, जब 125 सीसी सेगमेंट स्कूटर की बात हो रही हो तो फिर मैक्सी स्कूटर वाला फॉर्मेट ओरिजिनली सुजुकी ने बर्गमैन में ही लाया था एंड रिसेंटली कंपनी ने इस स्कूटर को दे दिया है एक कंप्लीट रिवैम्प, कंप्लीट फेसलिफ्ट। तो इस वीडियो में हम क्विकली चेकआउट करेंगे कि क्या चेंजेस हो गए हैं इस स्कूटर में, क्या अपग्रेड्स हो गए हैं और कुछ परफॉर्मेंस में अंतर आया है कि नहीं। So keep watching and stay tuned. हाइलाइट्स की बात करूं तो फ्रंट पे आपको देखने को मिलता है ये एक बड़ा सा स्मोक्ड विंडस्क्रीन, जिसके नीचे ही ये ट्विन पॉड एलईडी हेडलैम्प क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। दे ऑल्सो गेट इंटीग्रेटेड DRLs एंड देयर आर ऑल्सो LED इंडिकेटर्स फ्लैंकिंग ऑन आइदर साइड्स। पीछे की तरफ आए तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा लंबी और वाइड सीट है इन टिपिकल बर्गमैन स्टाइल। कुशनिंग भी इसकी काफी अच्छी खासी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको मिली जा रही है बर्गमैन स्ट्रीट की बैजिंग। सुजुकी इको परफॉर्मेंस का भी बैजिंग है यहाँ पर, विच इंडिकेट्स दैट द इंजन गेट्स द SEP टेक्नोलॉजी विच सुजुकी सेज मेक्स इट मोर एफिशिएंट। अब टेल एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखने का मिलेगा एक कंप्लीटली रीडिजाइन टेल लैंप अलोंग विद इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर्स। बट ये जो पैनल या जहां पर आप सुजुकी लिखा देख रहे हैं, दिस इज द स्पेशल बिट दिस टाइम अराउंड इन द बर्गमैन स्ट्रीट एंड दैट इज बिकॉज ये रिवील करता है द फ्लैप to open up your fuel cap। इसमें और भी बहुत सारे provisions हैं for keeping your knickknacks and other luggage stuff as well। Starting with this cubby hole जो यहाँ पर open style में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मैं अपना फोन काफी आसानी से रख सकता हूँ। But if I want more privacy और security, यहाँ पर एक फ्लैप के साथ कभी होल भी है एंड इसके अंदर आपको मिलता है एक चार्जिंग पॉइंट विच इज बैकलिट। यहाँ आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि एक लगेज हुक भी है, बट देन देयर इज एन एडिशनल लगेज हुक हियर दैट यू कैन यूटिलाइज व्हेन यू हैव केप्ट अ बैग ऑन द फ्लोर बोर्ड राइट हियर। अब देख लेते हैं मेन स्टोरेज स्पेस विच इज द अंडर सीट स्टोरेज एंड यहाँ पर आप रिवील करते हैं 24.6 लीटर्स ऑफ अंडर सीट स्टोरेज विच इज गुड for keeping your helmet। Now of course अभी तक इस वीडियो में आपने नोटिस करा होगा कि मैंने सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट की किसी भी फ्लैप्स या ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए कोई भी की का इस्तेमाल नहीं करा है एंड दैट इज बिकॉज आई एम राइडिंग द TFT एडिशन विच कम्स विद दिस वायरलेस की रिमोट फॉब। अब इससे क्या होता है कि दिस ऑपरेट्स वायरलेसली विद द स्कूटर, इट गिव्स इट द सिग्नल एंड देन आई कैन यूज दिस मल्टी फंक्शन नॉब हियर। अब TFT एडिशन की बात करिए जो है बर्गमैन का टॉप मॉडल, तो फिर मैं आपको TFT भी दिखा देता हूँ एंड दिस इज वेयर यू विल गेट टू सी द न्यू स्क्रीन ऑफ दिस स्कूटर। So this is a 4.2 inch TFT screen that gives you a host of information which toggles between your kilometer per liter, your engine temperature and also your average fuel efficiency, and then you also have a fuel level meter here, odometer readings, battery voltage and other information is also available in this display and is integrated really nicely। Of course side stand automatic cutoff भी बर्गमैन स्ट्रीट में सुजुकी ने दिया है। Now let's talk about how the scooter is to ride and how it performs। Well, the first thing that you will notice that it is really easy to sit on the scooter thanks to its low seat height of 775 mm। In terms of specs, इसमें वही 124 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन अभी भी मिल रहा है paired to the CVT automatic transmission। On the spec sheet, this now produces 8.43 PS of power and 10.2 Newton meters of torque। इसमें अब आपको फ्रंट एंड रेयर में 12 इंच अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस स्कूटर का है करीब 160 mm का। देखिए लार्जली दो वेरिएंट्स हैं, द राइड कनेक्ट एंड द राइड कनेक्ट TFT दैट यू सी स्टैंडिंग विद मी राइट नाउ। डिफरेंस दोनों वेरिएंट्स में मेजरली है ऑफ दिस 4.2 इंच TFT स्क्रीन विद द कनेक्टेड फीचर्स and this multi-function with the wireless key that I showed you earlier। If you remove these elements तो फिर आप आ जाते हैं इसके बेस वेरिएंट में जिसका नाम है the Ride Connect and it is priced at rupees 1.01 lakh ex showroom।
When you talk about this top model variant, it is priced at rupees 1.13 lakh ex showroom. So that is a considerable difference between the two variants and almost of rupees 12,000. Side note में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा that the older Suzuki Bergman is also still on sale and is priced around rupees 1.07 lakh. आ जाते हैं verdict में. Bottom line I would say अगर आप 125cc segment में एक स्कूटर ढूंढ रहे हैं, then of course the Suzuki Bergman has always been a top contender on this list and it still remains to be. Overall, in terms of performance, practicality, design and features, I think that this is a very well balanced package that Suzuki has come up with for 2026. और इसी के साथ हमारा समय आपके साथ आज के लिए यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या कुछ खास हमारे शो पर देखना चाहते हैं तो टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर हमें रीच आउट करें। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, अ न्यू मोटरसाइकिल, अ न्यू scooter or perhaps the Mercedes AMG CLA 53, then make sure you visit timesdrive.in to get all the necessary information to make an informed purchase. That's about all for today. I'll catch you same time next week only on the Times Drive Show.